Om Shanti, Namaste, and welcome to today's session on establishing clarity or calmness in crisis. Friends, today, because of this COVID-19, the pandemic has uh, made life little challenging and difficult across the whole of the globe. It has affected it has touched, or rather it has impacted all silos or verticals of our human existence, be it our physical health, be it our emotional health, be it our social health, or for that matter our financial, economic life is concerned. And how do we face this uncertainty or the difficult situation this COVID-19 has thrown? It is very, very imperative, it is very important for us to carry calmness during these difficult times, or to embrace calmness during challenging situations is concerned. So how do we establish calmness within when the external environment is very challenging? And this is what we would be focusing in today's session is concerned. I would rather give both the inner crisis and the external crisis, and where do we draw our inspirations from, or the source of calmness, so that not only during this pandemic, henceforth in our future life, whenever we are engulfed in a difficult situation, how do we bail us out, how do we come out of that particular situation, हम कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपनी आंतरिक स्थिति को कायम रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं, स्टेडी रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं। ये हमको सीखना भी है, समझना भी है, और सबको ये सिखाना भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, काम इन क्राइसिस को थोड़ा सा समझने के लिए मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है। इसको मैं आप सबके सामने शेयर करता हूँ। I will stop the video. Let us begin. So how do we have inner clarity? And when I'm clear, there's no confusion. It becomes very easy to establish calmness. It is said, friends, it is how we embrace uncertainty in our lives leads to great transformation of our inner being. वैसे तो कहा जाता है there is nothing certain but the uncertain. हमारा जो लाइफ है यही अनसर्टेन है. Yes, we can plan, but what may happen is not in our control. And it is said nothing is for sure. That is for sure. And what this pandemic has done is it forced all the governments across the whole of the globe to create a lockdown kind of a scenario wherein they wanted to minimize the spread of this disease is concerned. But what has it done, not at the physical level, but what at the mental level is, maybe it has it is, or rather trying to break our mental peace, our mental tranquility, our mental calmness, or vis-a-vis whatever lockdown situation is, I am able to establish my calmness. So this is where we have two options. या तो मेरा मन की स्थिति बहुत शांत और स्थिर है, या फिर वो बहुत agitated है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है. क्या है अनसर्टेनिटी? मैं समझता हूँ अनसर्टेनिटी इज लाइफ्स वे ऑफ टेलिंग दैट देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल. और यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा
again taking certain inputs from psychology, from parapsychology, from the spiritual understanding what I have learned and experienced from the Brahma Kumaris. And say, for example, there are two aspects to our human existence. One is our conscious mind, and the other is our subconscious mind. You are listening to me right now. You are aware of the time. Uh, you are aware of the surroundings. You are aware of the people around you. You're conscious. But there is something more profound, more powerful, which is within you, inside of you, and it is also very active. And that is what we call it as the subconscious mind. So the subconscious mind is more powerful than the conscious mind. And how do we use this, our conscious mind, to reprogram our conscious mind? I'll touch upon it in the next session, but today we will try to understand little on how we are looking at uncertainty is concerned. Now, if I give you a very simple example, when a child is born, let us assume the child is 2 years of age. Now, this is little scientific in the perspective that I'm telling. In foreign countries, in the Western world, the parents, along with the trainer, they take this maybe 2-year-old baby, little toddler kid, into the swimming pool. And if they leave the little child into the swimming pool under guidance, but natural, the baby will sink into the water. But it is observed that the baby can hold the breath inside the water. The baby can keep the eyes open, and scientifically, this is what pediatricians say, there is a response by this baby which enables the baby to hold the breath and keep the eyes wide open inside the water, and this is called as bradycardic response. And why is the baby able to do it? Because nobody has trained the baby. This is said that the baby is born with this particular um, ability to hold the breath and open the eyes when submerged in water. This is a reflex the child is born with. And why the baby is born with this reflex is because the baby was inside the mother's womb surrounded with the liquid. And if under guidance, if the baby is trained to float in the water, to turn himself upside down so that the baby is on the back and floating on water, and we can train the baby so that in the Western countries, where if the parent are busy into something and they miss the eye on the child, and if the child crawls, because there in their houses they have big swimming pools, because every house has a swimming pool, and if the baby crawls and falls into the swimming pool, the baby can die by drowning into the water. But if we can train the child, a 2-year-old baby, to do this, to just float in the water, we can save lives. And this is a very common practice in the Western world. Coming to an Indian scenario with the same reflex the child is born with, and let us assume the same 2-year-old baby grows up to, say, a 10-year-old child, or maybe a 15-year-old child, and on a summer vacation, the parents, want the child to learn swimming, and they put him to a swimming coaching class. And there, the coach asks the child, maybe a 10 or a 15 or a 12-year-old child, to now jump into the water. The baby would get frightened. नाउ माय क्वेश्चन इज, ये डर कहाँ से आया इस बच्चे को? एंड ये डर आया थैंक्स विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू मॉम, डैड, टीचर्स, सराउंडिंग्स, elders, books, movies, social media, anything and everything that the surrounding is programming my subconscious mind. Giving an Indian scenario example, मान लीजिए the same family with the 10-year-old child goes for a vacation, a picnic, an outing wherein there is a swimming pool, there is a nearby river, there is a seashore, there is a beach, and every time the child goes close to the water, there is an evoking response from the parents. नजदीक नहीं जाना, तुम डूब जाओगे, नजदीक नहीं जाना, तुम डूब जाओगे, नजदीक नहीं जाना, तुम डूब जाओगे, you'll drown, you'll drown, you'll drown. So
the 10-year-old or the 15-year-old girl or a boy, the mama or the papa programs, and that goes deep down into the subconscious mind that I will drown, that I will drown. Now in the swimming, coaching class, training program, the coach says, jump into the water, my dear young man. Your height is 5 feet. The swimming pool's depth is only 4 feet. There is no possibility that you will drown. All you have to do is just stand up. I mean, it will not even, touch your maybe your chin. But the child says no. Now the subconscious mind is very powerful. Consciously, logically, rationally, looks everything fine, but the subconscious mind inside tells me खतरनाक है, वो आपको डराएगा. Maybe I'll have palpitation, maybe I'll start sweating. So in psychology there is a term called as paired association. And with uncertainty also, I think we have been all being wrongly programmed. Spirituality is basically taking away the old, redundant, obsolete, folklore, traditional, not the right programming of the belief system I have got into my mind. And that's where, we all are aware that I don't know what's going to happen tomorrow. Even before COVID-19, life was very uncertain. I don't know whether I'll be alive tomorrow, the next moment. But still we fear death, but still we cry, still we are afraid of, a reality called as death. It is because since childhood, I as a small child has only seen pain, agony, trauma around somebody's death. And I associated, my mind has associated and paired an association that death is painful, whether it is my death or somebody else's death. And as the child grows, again we have hammered into the child's mind, तुम पढ़ोगे नहीं, तुमको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, तू नौकरी नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. I mean, it's not about zindagi barbad ho jayegi. It is a kind of a fear psychosis that life can only be happy when I get into IITs, when I score good marks, when I earn a lot of money. If that would have been the case, I could tell you umpteen examples. I mean, it will take days to tell you examples. People who were richy rich, they got into depression. They had, abusive relationship. They got into drinking. They had a painful, life. But then what are we doing to the subconscious mind? And this is where today Calm in Crisis, I'm trying to set the context. So spirituality for me, it is not only about Brahma Kumari. It's not about wearing a white dress. It's not about going to the Brahma Kumari center or following their discipline. It is nothing to do with Brahma Kumaris. Spirituality is anytime hugely different from religion. I am not here to speak anything about religion, but I'm here to speak about spirituality. And people misconstruct or misunderstand Brahma Kumaris as a religious organization. And I respect all religion. I have no issues with any religion, but I have problem with anything that is not the truth. I'll give you a very simple, rather complex, although this is little, paradoxical of what I'm saying. मान लीजिए आज मैं आपसे बात करता हूँ ट्रस्ट पे. मान लीजिए हमारा आज का विषय है बिल्डिंग रिलेशनशिप, स्ट्रेंथनिंग इमोशनल बॉन्ड्स. और मैं कहता हूँ कि विथ माय एक्सपीरियंस, आई एम मिस्टर गिरीश. आई हैव हैड अ 20-year experience traveling across the length and breadth of the country. मेरे बाल ऐसे ही नहीं उड़े हैं, मेरे बाल ऐसे ही नहीं पके हैं. I mean, I have spoken to n number of people, and my conclusion is, dear friends, please don't trust people blindly. My experience, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, आपको उसको अनुभव करने की जरूरत नहीं है. बस मेरी बात मान लीजिए, आप बचे रहोगे, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा. आप गलती से भी किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना. ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये कलयुग का समय चल रहा है. And because of the credentials that Girish carries, you will say fine, because you are saying it, it's okay. So let us assume tomorrow another Girish comes for a webinar. This is Girish B.
And he says, I am 60-year-old chap. I have an international exposure. I was awarded as the best speaker. I am a psychologist. I am a psychoanalyst. I understand parapsychology. I understand quantum physics. I understand life. This is my award, reward, credentials, blah, blah, blah. I've spoken to across the whole of the globe, different cultures, different religion, different society, different everything. I mean, anytime better than the previous Girish. And he says, my dear friends, my take on life is beautiful, life is easy, life is simple. अरे आंख बंद करके विश्वास करो. पहले ही आप अगर नेगेटिव भाव से देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम तो हो ही होगा. एक बार विश्वास करके तो देखो. मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ. मेरे 60 साल का अनुभव, इतना रिच एक्सपीरियंस. And he says, and he goes by. Now, my question to you, dear friends, is respected audience is, should you believe Girish 1 or should you believe Girish 2? Girish 1 says, don't trust people. Girish 2 says, trust people. Now, this is their personal experience. So, my question is, I respect everybody's experience of life. But my question is it the truth? And that's where the whole problem is. आज घर में माता पिता अपने बच्चों से कहता है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं ना, नालायक, तू पढ़ता नहीं है, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा. That is your experience. Okay, dad, I respect your opinion, I respect your experience, I respect whatever you have gone through, whatever you have learned from life. But is it the truth? Now, spirituality is not Brahma Kumaris. So whatever I'm going to tell you is not a philosophy from the Brahma Kumaris, because philosophy is also human creation. I'll give you a simple example. If you throw a pen up, or maybe throw anything up, it will come down because of the G-force, gravity. Now, gravity, who created gravity? Hinduism, Christianity, Muslim, Brahma Kumaris, Professor Girish, Rajni Didi, science, technology, history, geography, quantum physics, atom, Isaac Newton, the government of India, Americans, Britishers, philosophies, Buddha. Who created all these things? Who created gravity? Science, technology, nanotechnology, big data, artificial intelligence, anthropology, sociology. Sorry, according to me, gravity is the truth. I mean, it's a physical truth. I'm just giving an analogy. It is beyond, human comprehension. It is beyond science. Sir Isaac Newton figured it out, that if you throw it up, he calculated, he experimented, he observed, he analyzed, and then gave a name to it called as gravity. Truth के लिए 2 क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी. नंबर 1, वो सदा होगा, और नंबर 2, वो समान होगा, always and for everyone the same. Gravity for the Americans, for Indians is the same. It doesn't discriminate between Hinduism or between Indians and Americans, white and black. Gravity सबके लिए समान है और सदा है. If I take my life, 80 years average Indian life expectancy with the life of the earth, I mean, it doesn't, then there is no comparison. मैं कह सकता हूँ that it is eternal phenomena. जब तक ये धरती रहेगी, वो मास रहेगा, वो खींचेगा हर चीज को within a limit 9.8 meter per second square. उसी अंदाज में हमें अनसर्टेनिटी को, हमारे लाइफ को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारा हर डायमेंशन ऑफ लाइफ को देखना है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ट्रुथ को समझना है. एंड वन थिंग आई विल ऐड, आई मीन नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक बट वेरी प्रोफाउंड, ग्रेविटी को लेकर आई मीन आज तक इस संसार के कोई 2 लोगों में, जब से ग्रेविटी बनी है, जब तक रहेगी, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो पढ़ा नहीं. आप भी इस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं. Because of gravity, no 2 people have fought ever on planet Earth. Fought तो बहुत दूर की बात है, तू मैं नहीं हुआ, मेरा gravity, तेरा gravity. But look at the whole world. My country, your country, my God, your God, my religion, your religion, my property, your property, my water, your water, my family, your family. There is so much of complexities. There is so much of my-centric universe. And that all makes life very complicated. It's not uncertainty, it's not death. Death is a reality. गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, मैं भी शरीर छोड़ूंगा. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. मेरी माँ ने भी शरीर छोड़ा. विद ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा मत मानिए, आप भी शरीर छोड़ने वाले. आप जिनको इतना पकड़ के रखे वो भी जाने वाले. श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, जीसस क्राइस्ट ने भी शरीर छोड़ा. फिजिकल लेवल पर इस संसार में कोई भी है, ये कल जाने वाला है.
कल परसों नरसों कभी भी जाएगा. Now that is a reality. Why do we cry? Why are we so afraid? Where is acceptance, the power to accept? And then we make a big issue of uncertainty. Actually, uncertainty कुछ भी नहीं है. The problem is in my mind. Why? Because we all lead a very falsified, operating system with which I'm operating, and it has all gone into my subconscious mind. And हमारा सब है ना autopilot mode में चलता है गाड़ी. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक कुछ आएगा तो मेरे को डर लग जाएगा. मैं घर में एंटर करता हूँ, ऊपर छिपकली है तो डर लग जाएगा. अब डरने की क्या जरूरत है छिपकली से? बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो हार्मोन रिलीज कर देगा, पसीने आ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, सांस फूल जाएगा एक छिपकली को देखकर. I mean, a lot of things to speak about, but one, agenda, one, clarity with which we should proceed ahead for today's session is, the truth. So uncertainty, according to me, there is nothing called as, certain, but the uncertain is the only certain thing. And that's is where I think wisdom comes into picture. And what is wisdom with respect to the uncertainty? Uncertainty may, we can't predict what is going to happen. जब चीज कुछ predictable है तो हम कह सकते हैं things are going to happen in a certain way. It's going to rain, I can predict because काले बादल है. मेरा वेदर रिपोर्ट कहता है कि आज बहुत बारिश होने वाली है मुंबई में, तो मैं रेनकोट और छाता और उसके अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर सकता हूँ. अब बताइए जब अनसर्टेनिटी है तो मैं क्या प्लान करूँ? So we can do plan for something that is predictable. For unpredictable things, when there are uncertain situations, you can still plan, but there is no surety and guarantee of the certainty of the result that is going to come. And when I plan for something not knowing how the outcome is going to shape up, this understanding in my mind, without negativity, without fear, without worries, without stress कि मैंने इतना मेहनत किया और देखो रिजल्ट ऐसा आया, तो ये फ्रस्ट्रेशन के बिना शांति मन के अंदर, खुशी मन के अंदर, आनंद मन के अंदर, यस मैंने इतना मेहनत किया, आई हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ दिस इज कॉल्ड एज विजडम. And wisdom is the understanding in my mind about the uncertainty without negativity is called as wisdom. I'll give you a simple example. I was doing a program with Times Internet in the first phase of the lockdown. And so this guy, spoke to me. He was from Delhi and he asked me this question, ki, sir, I have to go out and I fear that I may contract this COVID-19. So I said, if you're going out, are you preparing yourself well? बोला हाँ मैं पीपी ड्रेस पहनता हूँ, मैंने वो क्या नाम है हैंड ग्लव्स पहना, मास्क लगाया और डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ. तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है? बोला सर अगर कोविड हो जाएगा तो. So now there are two preparation. One is at the external level where this chap has already prepared himself, but internally मन में डर है. मैं डर की भावना के साथ वो पीपी ड्रेस पहन रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ और अंदर बहुत ज्यादा वरीज है. So wisdom is when you know things can go wrong and there is nothing wrong about it because you're prepared both externally and internally. Now keep thinking about it, getting anxious, getting worked up, fear, disturbance. Now this is not wisdom. And this is where we have to understand one thing, that freedom, because there are two types of freedom. One is the external level, the other is at the internal level. And I am reminded of a very beautiful, concept called as, हिंदी में इसको राजतंत्र, प्रजातंत्र और स्वतंत्र कहते हैं, मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस. पुराने जमाने में राजा प्रजा को शासन करता था, प्रोटेक्ट करता था, उनका देख रेख करता था. फिर प्रजातंत्र आया पोस्ट इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, बाय द पीपल फॉर द पीपल, प्रजा का प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रजा पर शासन. We elect our representative, and for the next 5 years, they rule over us, they care for us, they give all the, facilities and stuff. In the drivenness to, with these two concepts, tantra means system, swatantra, स्वयं का स्वयं के ऊपर complete control, स्वयं का स्वयं के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण, पालना, प्यार, ध्यान, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन. और मैंने आज से करीब 25, 30,
23 to 24 ईयर्स पहले मैंने MBA कंप्लीट किया। और मेरे टीचर्स ने, मेरे गुरुओं ने, बहुत आदरपूर्वक कह रहा हूँ, बहुत सम्मान से कह रहा हूँ, और सचमुच दिल की भावना है उनके प्रति, उन्होंने मुझे सारी चीजों का मैनेजमेंट सिखा दिया, ऑल एम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट एम इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेज मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेज मेन, HR मैनेजमेंट, मैनेज मनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेज methodologies, process and project management, manage machines, operations management, manage everything। एम बस एक एम नहीं सिखाया, 2 साल का MBA प्रोग्राम, और उसके बाद तो मैंने इतने जगह मैंने सेशंस करा लिया, हर यूनिवर्सिटी में जाकर के मैं वहाँ के जो भी चांसलर हैं या जो भी डीन हैं उन सब से बात करता हूँ। सर, मन को मैनेज करने का कोई कोर्स, डर, चिंता, भय, कंपटीशन, जेलसी, हेट्रेड, डिप्रेशन, एंजाइटी, हम इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं, हिस्टोरियन बना रहे हैं, बट एक अच्छा मन, एक एक सुदृढ़ मन। मुझे याद आता है डॉक्टर कलाम, जब मैं पहली बार डॉक्टर कलाम से मिल रहा था, हम बहुत सारे लोग थे, उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा कि मेरा एक सपना है भारत के लिए कि बाय द ईयर 2020 इंडिया शुड बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और उन्होंने हम लोगों से पूछा कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करके बन सकता है। हम बहुत उत्साहित होकर कहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक पावर, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, हमने सब जवाब दिया। डॉक्टर कलाम का बहुत ही ब्यूटीफुल जवाब था। डॉक्टर कलाम ने कहा बस एक ही शक्ति भारत को नंबर 1 बना सकती है, और वो है एन इग्नाइटेड माइंड, अ पावरफुल माइंड। और यही मन आज अधीन है। और इसके लिए अगर मेरी मन की स्थिति बाहर की परिस्थिति पे डिपेंडेंट है तो वो ब्रेक डाउन है। बाहर क्या चल रहा है उसके कारण मैं अंदर भयभीत हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, मतलब आउट डिपेंडेंट। और बाहर कैसे भी हो रहा हो, माहौल कैसे भी हो, लेकिन मेरी मन की स्थिति बहुत शांत है, काम है। और इसके लिए मैं आपके साथ कुछ सत्य इक्वेशंस बताऊंगा। पहला इक्वेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू, जो भी मेरे इर्द गिर्द चल रहा है वो किसी और के मर्जी से हो सकता है, बट व्हाटएवर हैपेंस विद इन मी ओनली वन पर्सन शुड डिसाइड एंड दैट इज मी। और मेरे अंदर क्या चल रहा है ये भी मेरे बाहर का कोई व्यक्ति, परिस्थिति, सिचुएशन, हैपनिंग ही डिसाइड करे, तो फिर मैं मानता हूँ कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा गुलाम हूँ। If whatever is happening within me is also dictated by somebody or something external to me, then I am the greatest slave on planet Earth. ये इक्वेशन को सेट करना है अगर अनसर्टेनिटी में कामनेस लेकर आना है। नंबर 2, I who thought that I had complete control of my life realized that I can control only 3 things. मुझे लगता था कि मैं पढ़ लिख कर, बहुत पैसे कमा कर, अच्छे पोस्ट पोजीशन में पहुंच करके I will be able to control life, my future, my destiny, my people, my team, my co-workers, my staff members, I mean anything and everything, but realized thanks to Brahma Kumaris, मुझे पता चला मैं सिर्फ 3 चीजों को ही कंट्रोल कर सकता हूँ, बाकी तो सब आउट ऑफ कंट्रोल है। Yes, I can influence. Yes, I can guide. Yes, I can request. Yes, I can motivate. Yes, I can inspire through my actions, through my heroism, through my credibility of my value system, of my integrity, of my conviction, of my all my good personality. Yes, people can follow me, but I can only control 3 things. Directly, I have only 3 things. One is my thoughts. Number 2 is the images, जिसको मैं attitude कहता हूँ, दृष्टिकोण कहते हैं. And the third one is the actions that is derived out of it. Beyond this, nothing is under my control. आज तो हम माता पिता बच्चों को कंट्रोल करते हैं और फिर हमको कितनी तकलीफ होती है। वो था सेकंड। अब यही चीज को, कंट्रोल को लेकर मैं एक डायमेंशन में आप सबके साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ, सो दैट यू नो हम सब मिल करके हमारा जो यंग जनरेशन है, या फिर हम खुद या फिर हमारे घर में जो बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा एक परिवर्तन लाने के लिए हम करें। Now, this is what we call it as human evolution. I think we are going back to the, old
पैटर्न आज भी मनुष्य झुका ही हुआ है। अब वो वैसे नहीं झुका हुआ है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण वो झुकना शुरू कर दिया है। And I appreciate that I can talk to you sitting in one part of Mumbai and you are all in Delhi. This could happen because thanks to science and technology. But there is a little catch here. I don't want anybody to disconnect from the whole world. Please be connected to the whole world, but in a better way. And that better way, agar main aapse ek prashna पूछूं, I mean, not directly to you, but you ask the next generation, who is the master? You or your phone? And it is a simple question which is directed to our IQ, intelligent question. I know this is not right, but my IQ is hijacked. और अगर आप ये पिक्चर को देखें तो ये दिस यंगस्टर एट 1 maybe 1:40 in the night is busy watching his telephone, and this is a normal story. To take you into a lighter vein, you know, this is heaven, and most of the new arrivals seems incapable of conversation. They just stare at their hands in despair. So the new arrivals को इतनी आदत हो गई थी मोबाइल फोन को क्लिक करने की कि वो यू नो स्वर्ग में भी जाकर वही कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल नहीं है हाथ में। ऊपर वाला एक ओल्ड सिनेरियो था जब हम मोबाइल को या टेक्नोलॉजी को कहते थे मेरे को मेरा ईमेल दो, न्यूज़ बताओ, ये फोटो वहां भेजो। आज उल्टा हो गया है। हम में से कितने लोगों को पसीना छूट जाता है अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ऑन द मूव हैं और हमारा मोबाइल फोन एकदम लास्ट बैटरी के एकदम ब्रिंक पे है और मेरे को वो जो पावर बैंक है वो भी नहीं है मेरे पास, और अगर ये मोबाइल मर जाएगा तो शायद मैं भी मर जाऊंगा, ऐसा हाल है। और हम तो डेस्परेटली वी आर लुकिंग एट दैट 3 पिन पॉइंट प्लग को हम ढूंढते रहते हैं। It is the mobile which is in turn, ordering me, charge me. Who is in pain? Who is anxiety? Give me some Wi-Fi और इंटरनेट कनेक्शन। अगर नेटवर्क कहीं नहीं है तो भाई हम तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मेरा न्यू नोटिफिकेशन मेल आया, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं किसी और से बात कर रहा हूँ और हमारा नोटिफिकेशन बजता है। मैं तो वो नोटिफिकेशन को ऐसे देखता हूँ जैसे हुक्म मेरे आका, ऑर्डर दो। मैं तो भारत का प्रधानमंत्री हूँ भैया, लद्दाख का इशू मुझे ही हैंडल करना। और हमारे क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस रॉ ने हमको ही मैसेज भेजा है कि यू टेक एन एक्शन, देयर इज अ सीरियस सिचुएशन। और मैं वो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन या जो भी नोटिफिकेशन को खोल के देखता हूँ तो पता चलता है वो वोडाफोन अलर्ट कि तुम्हारा डेटा पैक खत्म होने वाला है कल। एंड दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। आंसर दिस कॉल। व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट आंसर अ कॉल? धरती आसमान पाताल एक हो जाएगा। I mean, these questions are not directed to you. I'm asking in general, where are we heading as far as our behavioral traits are concerned? And this is why a cell phone is called a cell phone. I finally realized it that people are prisoners of their phones, and that's why it is called a cell phone. This is the height. The guy who invented predictive text, आपके कंप्यूटर में वर्ड फाइल में और मोबाइल में प्रिडिक्टिव टेक्स्ट हो जाता है, वो प्रिडिक्ट कर लेगा। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इट्स बेस्ट। ही डाइड लास्ट नाइट, और मैं उस व्यक्ति के लिए मैं लिख रहा था हिज फ्यूनरल इज नेक्स्ट मंडे, एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फ्यूनरल FUN लिखा, उसने फनफेयर ले लिया, एंड मंडे के लिए MON लिखा ही नहीं, उसने मंकी कर दिया। Where is emotional intelligence? Where is convenience? Is what I'm trying to write, and what is technology doing? I mean, take it on a lighter vein. The guy who invented autocorrect हो जाएगा ना spellings for smartphones passed away today, और मैं लिख रहा था rest in peace। जैसे ही रेस्ट लिखा उसने रेस्टोरेंट कर दिया, इन पीस को पीस बना दिया, शांति वाला पीस नहीं, टुकड़ों वाला पीस बना दिया। And this is where the situation is very challenging. This is family time, this is good time। पूरा परिवार एक ही सोफा सेट में बैठ के साथ में क्या इमोशनल कनेक्ट है, क्या फेस टू फेस ह्यूमन मोमेंट्स है। मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा ह्यूमन मोमेंट में। वी आर ऑल मिसिंग ऑन द ह्यूमन मोमेंट। इट्स इज वेरी वेरी इंपरेटिव and important for all of us. It's a very beautiful word, human moments, that exchange of energy, the exchange of human emotions are very important. मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है, द इनर क्राइसिस। COVID-19 लॉकडाउन वो तो बाहर का क्राइसिस है, ये हमारा अंदर का क्राइसिस है। व्हाट आर वी डूइंग इनसाइड? वी आर on a wrong track. Can we re-establish this? Can our dining tables be like this? मैं वैसे केरला को बिलोंग करता हूँ, साउथ इंडियन हूँ,
उसके लिए नहीं मैंने ये पिक्चर निकाला है, बिकॉज इज अ टिपिकल साउथ इंडियन डाइनिंग टेबल विद वो केले के पत्ते और चावल और पापड़ और वहाँ का जो ट्रेडिशनल भोजन है। मैं इसीलिए इस फोटो को नहीं लेके आया हूँ। इसको खास मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इस डाइनिंग टेबल में एक भी मोबाइल फोन नहीं है, एक भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजिटल अप्लायंस यहाँ पर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ टीचर्स, we all have to inspire, motivate by setting examples to establish something like this, or it's going to be very difficult. COVID-19 को शायद हम हैंडल कर पाएंगे, बट ये जो हमारा डिजिटल जो इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन एंड थिंकिंग है, इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एंड व्हाट इट हैज डन इज the 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 techno brain that we have developed, with a lot of short burst of attention, repeatedly checking our mobile phone, क्या आया क्या हुआ। और उससे क्या होता है ना, हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। देयर इज 4 हार्मोन्स व्हिच इज कॉल्ड एज डोस, DOSE, D for dopamine, O for oxytocin, S for serotonin and E for endorphin. They are called as happy neurotransmitters. ये उतना ही प्लेजर हमको देता है जैसे हम कुछ खाकर, देखकर, सूंघकर, टच करके हमको मिलता है। वैसे ही ब्रेन में ये सीक्रेशन अगर हो जाएगा तो हमको वैसे ही प्लेजर की फीलिंग होगी, खुशी की फीलिंग होगी। और जैसे ही मोबाइल का नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा, एक्चुअली वो देखने के बाद है ना, वो डोपामाइन रिलीज हो जाता है। एंड इसका जो असर होता है कि अगेन एंड अगेन एंड अगेन हम जब करते हैं, so what it happens is that, and we are doing it without our knowledge. And the reason why it has become so important for us to learn about it in today's age is everything is very insidious और हमारे knowledge के बिना ही हो रहा है. And it is very slowly but steadily building up, and it will reach unimaginable proportion, and it will cause you very 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 long term damages to our brain, our behavior and our psychology. And what it is doing is hyperactivity. मुझे, अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं, आज मैं बैठा हूं या फिर मान लीजिए हमारे दादाजी बैठे हैं और हमारा एक यंगस्टर बैठा है टुडे। मान लो दादाजी कहता है कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट, स्टेट बैंक को मुझे थोड़ा डिजिटल में थोड़ा देखना है, NEFT करना है। और ये छोटू भी बैठा हुआ है। और मान लो इंटरनेट अगर स्लो हो जाए, उसने क्लिक किया सबमिट बटन में या फिर लॉगिन बटन में, और वो डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग, ओपनिंग ओपनिंग, मे बी फॉर सम बिकॉज ऑफ सम रीजन द नेटवर्क, बिलीव मी द यंगस्टर वुड बिकम एंग्शियस। वो तो तड़पना शुरू कर देगा, कितना स्लो इंटरनेट है, ऐसे थोड़ी ना होता है। स्पीड, क्योंकि हमारी सोच भी स्पीड हो गई। मे बी द दादाजी विल वेट, छोड़ना 2 मिनट रुक जा, हो जाएगा, क्या तुम इतना एंग्जाइटी क्यों ले रहे हो। हाइपर एक्टिविटी एंड ADHD, ये तो छोटे छोटे बच्चों को, तो मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ काम किया है, डॉक्टर कलाम, और कार्डियोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे ब्रह्मा कुमारी ने बहुत सारे रिसर्च किए। बिलीव मी, आजकल बच्चों में बचपन से हाइपर यू नो अटेंशन डेफिसिट है। पता है क्यों? क्योंकि माँ गर्भवती होने के बाद माँ भी हाइपर एक्टिव थी। वो 9 महीने एवरीथिंग शुड बी फास्ट, बटन दबा करके होना चाहिए। नंबर 2 इज इन अटेंशन। इसको मैं थोड़ा डिटेल में लूंगा। हम वी आर लीडिंग टू मोर ऑफ एन इनअटेंटिव इंडिविजुअल। हमारा अटेंशन स्पैन इज कमिंग डाउन सो ड्रास्टिकली। हम व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, FB भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी, टन्स एंड टन्स ऑफ फ्रेंड्स भी है, ऑनलाइन है, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ही नहीं। मैं मम्मी के साथ बात कर रहा हूँ लेकिन मोबाइल में लगा हुआ हूँ। डिप्रेशन मेजर चैलेंज, मल्टीटास्किंग मैनिया। हम जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है ना, वी कैरी ईगो ऑन आवर शोल्डर्स दैट ओके फाइन, मल्टीटास्किंग, आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग। हम गाड़ी भी चला रहे हैं, मोबाइल में बात भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं। वो सब ऑटो पायलट मोड के कारण हो रहा है। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, psychology today 2016 writes a report that multitasking, which has become a regular part of our life, it is dangerous. It harms our brain. It leads to memory problem. पुराने जमाने में हम लोग सब्जी खरीदने जाते थे, 1 किलो अगर 27 रुपए टमाटर है, और अगर मेरे को सिर्फ 200 ग्राम ही खरीदना है, तो विद इन नो टाइम आई कैलकुलेट 200 ग्राम ऑफ, क्या बोलते हैं, अगर 27 रुपए किलो है तो 200 ग्राम का कितना होगा। आज एक बच्चे को भेज दो,
वो तो सीधे पूछेगा सब्जी वाले को टोटल बताओ भाई, उसने कहा 360 रुपया, वो 360 देकर आ जाएगा लेकर के। वो अपने मन को ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा है। जरूरी नहीं है करना, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इंक्रीज्ड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। पुराने जमाने में हम सब मेमोराइज करते थे, हमको बर्थडे याद होते थे, हमको एनिवर्सरीज याद होते थे, सबके नाम याद होते थे। आज हमको याद करने की जरूरत ही नहीं, सब हमारे मोबाइल फोन में। बच्चों के ग्रेड्स कम होते हैं, इट हार्म्स रिलेशनशिप। एक्सीडेंट, अटेंशन नहीं होगा तो हम एक्सीडेंट हो सकता है, हम गिर सकते हैं, हम लेस प्रोडक्टिव और लेस एफिशिएंट हो जाते हैं। सो देयर इज अ क्लियर कट रिलेशनशिप बिटवीन न्यू टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोजर टू mental health. This is very interesting. This is an old picture. I picked it from the internet because I couldn't get something good, a latest one. In the year 1980, this is very interesting. In the year 1980, distraction between time taken for between two interruption was 2 hours. आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में हैं, कोई आके आपको बात करे, आपको डिस्टर्ब करे, it will take 2 hours. But with this pager, cell phones, emails, web, इसमें तो लिखा भी नहीं है, व्हाट्सएप और क्या है, फेसबुक, एंड इट हैज रीच्ड टू अ प्रोपोर्शन ऑफ 0 सेकेंड। एंड अगर आप देख रहे हैं इसमें वो जो ऑरेंज वाला जो कर्व है, इट हैज रीच्ड asymptotically approaching zero. This is a mathematical term which basically means limiting behavior. और ये कहता है, यू नो, अगर आप थोड़ा कंप्यूटर की भाषा को समझते हैं, यू नो, कंप्यूटर if it has to switch from one program to the other program, it has to contextually switch. जैसे आप एक रूम से दूसरे रूम जाएंगे तो वहां स्विच ऑन करना पड़ता है, फिर यहाँ स्विच ऑफ करना पड़ता है आपके कमरे में। वैसे ही कंप्यूटर को भी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के लिए इट हैज टू बी कॉन्टेक्चुअली स्विच्ड। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रेन का, सीपीयू का जो इंटरप्शन है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है दैट वो 0 लेवल पर, हम 0 सेकेंड में हम एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, चौथा प्रोग्राम कर रहे हैं। एंड इट हैज क्रॉस द ब्रेन्स थ्रैशिंग थ्रेशोल्ड लिमिट। बेचारा ब्रेन है ना, सिर्फ स्विच ऑन स्विच ऑफ ही कर रहा है। एंड इट the brain spends a lot of time switching the program rather than running the program. और हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। एंड वी विल ऑल सफर फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं आजकल हम जो भी करते हैं ना, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है। पता है क्यों मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस करने का टाइम ही नहीं दे रहे। वॉकिंग भी कर रहे हैं तो कान में गाना है, हेलो भी कर रहे हैं तो वो हेलो में एनर्जी नहीं है, गुड मॉर्निंग शर्मा जी, वो आदत, मतलब वो क्या बोलता हूँ मैं उसको, ऑटो पायलट मोड में है। शर्मा जी को देखा, मेरे अंदर का कुछ और बोल रहा है गुड मॉर्निंग शर्मा जी, लेकिन मैं और कहीं हूँ। आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग द गुडनेस एंड द विश। We have lost our ability to experience life, experience the world, experience the presence of my family, experience work from home, experience kids, experience parents. And this is very, very, very critical. Distracted and constantly stimulated brain is a weak and a stressed brain. On an average, this was Gloria Mark. This lady did a research with MIT students, and she gave these a bunch of students some activity, and she found that on average people switched tasks and self-interrupted. मैं आज वर्ड फाइल पे काम कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप में मोबाइल को देख रहा हूँ, व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आया कि नहीं है। And you know the duration was 3 minutes and 5 seconds. Every 3 minutes and 5 seconds, I'll self-interrupt me. क्या है concentration? And think of a scenario, a difficult scenario. I wish this shouldn't happen. I am admitted in the hospital and I have to be operated, and my surgeon walks in with 3 minutes and 5 seconds of his attention span. And he carries a cell phone inside the operation theater. Only God can save me then. Context switching can kill up to 80% of the productive time. Suppose मैं 1 घंटे में एक टास्क कर रहा हूँ इज इक्वल टू 100% प्रोडक्टिव टाइम, फुल कॉन्सेंट्रेशन। अगर उस 1 घंटे में मैं 2 एक्टिविटी कर रहा हूँ तो एवरी एक्टिविटी विल टेक 40% प्रोडक्टिव टाइम, 80%, 20% आई विल स्पेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, उसमें भी खर्चा हो रहा है। और अगर उसी 1 घंटे में मैं 3 एक्टिविटी कर रहा हूँ तो 20 20 20
60% इज प्रोडक्टिविटी, 40% इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब आप देख लीजिए, आप और मैं क्या करते हैं सारा दिन, 5 मिनट क्या हम एकाग्रता से बैठ सकते हैं? क्या मैं अपने वाइफ के साथ, मम्मी पापा के साथ फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन में कंप्लीटली इन्वॉल्व होकर के हम बात कर सकते हैं विदाउट अ मोबाइल फोन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन? एंड इट इज सेट फोकस इज लाइक अ मसल, just like I go to a gym and I work onto my quads or my biceps, it will atrophy if I don't use it. वो weak हो जाएगा. Divided attention. In the year 2000, average human attention span was 13 seconds. Goldfish का is 9 seconds. And today, internet user के लिए average attention span is 3 to 5 seconds. So tomorrow you start working in a, what I call it as digital marketing company, and you have to make an ad for Girish, digital ad. It should not go beyond 5 seconds. नहीं तो मेरा टेंशन ही नहीं रहेगा, मैं आपका प्रोडक्ट को देखूंगा ही नहीं, फीचर को देखूंगा ही नहीं, डिटेल को देखूंगा ही नहीं. डिक्रीजिंग अटेंशन स्पैन, और ब्रह्मा कुमारीज में ये बहुत एम्फसाइज किया जाता है, वेयर माय अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. मेरी भावना किस में जा रही है और कौन सी भावना जा रही है? एंड wherever my energy flows, life grows. So what we decide to pay attention to and what we decide to ignore will shape our existence and our reality. सारा दिन गलतियां ही ढूंढो, सरकार ऐसे, प्रधानमंत्री ऐसे, लोग ऐसे, मेरे एचओडी ऐसे, मेरा टीम ऐसे, मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ ऐसे, बच्चे ऐसे, पत्नी ऐसी, सासू माँ वैसी, बहू ऐसी. ये यही एनर्जी दे रहे हैं हम, and that will shape your reality. So quality of work is time spent into intensity of focus. 2 घंटा पढ़ रहा हूँ लेकिन इंटेंसिटी ऑफ फोकस 25% है, तो एक्चुअली क्वालिटी ऑफ वर्क इज 1/4. 8 घंटा नौकरी कर रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ फोकस मान लो 25% है, तो आपने कितना काम किया? एंड आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा आधार एचआर का है, कितने बजे पंच इन किया और कितने बजे पंच आउट कर रहे हो. 8 घंटा काम करना, पिछले हफ्ते तुमने 2 घंटा कम काम किया था, उसके पहले हफ्ते तुमने 4 घंटा कम काम किया था, ऐसा नहीं चलेगा. Paying attention is equivalent to giving a slice of our life. This is very interesting. आजकल young generation have, I don't know, I mean they have stopped reading from books. असाइनमेंट भी करना होगा ना, बुक वाला नहीं देखेंगे, वो सीधे इंटरनेट गूगल में सर्च करेगा. फंक्शनल एमआरआई ब्रेन स्कैन shows left side is from reading from a hard bound book and the right is surfing the internet. ये जो रेड एरिया आप देख रहे हो ना, this is activity of the brain. एंड अगर लेफ्ट साइड आप देखोगे तो ये दर्शाता है आपका आईज while reading from a hard bound book is only linear movement of the eyeballs, left to right, left to right, left to right. आपका ब्रेन बहुत ज्यादा अननेसेसरली काम नहीं कर रहा है फालतू में. जबकि आप सर्फ, इंटरनेट वाला सर्फ में आप मान लो एक बुक पढ़ रहे हो, तो इट गो जिगजैग, आपको ऊपर भी देखना है, आपको स्क्रॉल डाउन भी करना है, वहां पर एक नया पॉपअप एड भी आ गया है, फिर आपने उसमें क्लिक भी कर दिया, नया लिंक में चले गए, नया पेज में चले गए. वो लेफ्ट टू राइट वाला सिस्टम ही नहीं चल रहा है. So it will tax the brain more while we are searching from the internet, and we are not absorbing the information, we are not relating it to our life. बस copy paste, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां से यहाँ, temporary. And the result of surfing is it is just information decoding, not information integration. मैंने सीखा क्या अपने लाइफ में, उसको मेरे को उतारना कैसे? And this has led to impatience and changing the structure of the brain. There is a term called as neuroplasticity. लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स को अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उनको पूरा रोड के स्ट्रीट, लोकेशन सब याद होना चाहिए. और उन्होंने एमआरआई किया और उन्होंने ये पाया कि जैसे जैसे वो याद करने लगे, पूरा मैप उनको याद होना शुरू हुआ, और जिन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिला उनका ब्रेन का न्यूरल कनेक्शन भी नया नया सेट हो गया. दैट इज चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. और न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहता है कि जो चीज मैं बार बार करता रहूंगा आसानी से, मेरा ब्रेन उसी चीज को करवाने के लिए और आसान कर देगा. अगर मैं एक दिन जल्दी नहीं उठता हूँ, दूसरा दिन भी नहीं उठता हूँ, 10 दिन नहीं उठता, 1 महीना नहीं उठता हूँ टाइम पर जल्दी, तो मेरा न्यूरोप्लास्टिसिटी मुझे जल्दी उठना ही नहीं देगा, वो और ज्यादा सोने पे उसको हेल्प करेगा. तो यू कैन आइदर यूज इट नेगेटिवली, यू कैन यूज इट पॉजिटिवली. अगर मैं एक दिन उठ जाता हूँ जल्दी और उसी चीज को मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, फिर आप देखेंगे कि आपको सुबह उठना, द न्यूरोप्लास्टिसिटी विल एड यू टू गेट अप. डीप लर्निंग, डीप लर्निंग तो कंसेप्ट ही नहीं है, इट्स ओनली शैलो ब्राउजिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आई वांट इट नाउ.
मुझे याद आता है बचपन में मैं छोटा था तो मैं वेट करता था पापा आएँगे और वो अमर चित्र कथा किताब लेकर आएँगे, चंपक, चंदा मामा। आप जो बड़े हैं यू कैन अंडरस्टैंड। आज बच्चा वेट करता है, क्या बोलते हैं, बाहर कुछ ऑर्डर किया है, वो इम्पेशेंटली वेट करता है, एंग्ज़ायटी में वेट करता है, पसीने छूट जाते हैं अगर थोड़ा लेट हो जाएगा तो। पुराने ज़माने में हम वेट करते थे, पेशेंटली वेट करते थे, आज एंग्ज़ायटी के साथ। So creative solution for unique problems we are facing today are not possible without deep and reflective thinking. ऊपर-ऊपर से हम प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। This is very interesting. This is the first de-addiction center in the country. It is in Delhi. Internet de-addiction center. These kind of setups are there in New York, in Beijing, in South Korea. इंडिया में भी शुरू हो गए। 2018 में निमहांस बैंगलोर registered the first case of Netflix addiction. नेटफ्लिक्स वो 12-15 घंटा सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रहा है, उसको खाने की चिंता नहीं, उसको भूख नहीं लग रहा है, उसको नींद नहीं आ रहा है, उसको ब्रश नहीं करना है, उसको अपने बेडरूम से निकलना है, उसको दाढ़ी नहीं बनानी है। ये सब हमारा इंटरनल क्राइसिस है, इसमें भी हमको कामनेस रखना है। साइकोलॉजी ऑफ सेल्फी, दिस इज द हाइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक, इन सब के जो फोटोज, गुड विशेस, पॉजिटिव मैसेजेस, ये सब देखकर लगता है ये दुनिया बहुत अच्छी, स्वर्ग यहीं पर है। सबके चेहरे इतने खिले हुए हैं, इतने ब्यूटीफुल, इतने तेज वाले। दुनिया में तो कोई रो ही नहीं रहा है, कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान ही नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेटेड ही नहीं है। आई मीन, एंड दिस इज वर्चुअली नॉट, आई मीन दिस इज ऑल फेक। So if I can send my photo and I get more likes, if that is the basis of my self-confidence, I mean, we are heading for a very, hard days ahead. और मैं कहाँ फोटो लेता हूँ, ऐसे ऐसे लोकेशंस में लेता हूँ जहां से फोटो खींच के मैं भेजूंगा तो सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। लुक, मैं ईफिल टावर के नीचे फोटो खिंचाया, लुक मैं नियाग्रा फॉल्स के ऊपर से फोटो खिंचाया। इट्स लाइक अ सोशल कंपटीशन, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। हाउ आई फील इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ आई लुक टू द होल वर्ल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। मूड मॉडिफिकेशन, अगर मेरा मूड खराब है, मैंने अपना फोटो भेज दिया और उसमें बहुत सारे लाइक मिल गए तो मेरा मूड ग्रेटिफिकेशन हो जाता है। सारी दुनिया कर रही है, मेरा पूरा ग्रुप कर रहा है, वो इस प्रकार के कपड़े पहनते, मेरे को भी पहनना है। एंड आई विल नॉट गेट इनटू मच ऑफ इट। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, decreased attention, distraction can lead to decreased productivity, mental health issue, family में broken relationship, infidelity, torn relationship, addiction disorders, online predators। आजकल तो इतने फेक आईडीज हैं। मैं वैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता हूँ, 4-5 साल हो गए। मुझे पता ही नहीं सामने वाला क्या बोलते पुरुष है या महिला है। दिस इज ऑन द फिजियोलॉजी, स्मार्टफोन सिंड्रोम, टेक्स्ट नेक, गले में प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलिसिस, बैक प्रॉब्लम, रिस्ट प्रॉब्लम, टेस्ट क्लॉज, फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उन लोगों को फील होता है जिनके पाँव नहीं होते हैं। दे गेट अ सेंसेशन आइदर पेनफुल और अदरवाइज कि उनका पाँव है, उनका पाँव है। अगेन द ब्रेन का जो पेड एसोसिएशन है। और शायद हम लोगों को भी हुआ होगा, हमको ऐसा लग रहा था कि मेरा फोन बज रहा था, वो वाइब्रेशन हो रहा था, या फिर मेरा पॉकेट रिंग कर रहा है, देखा तो फोन ही नहीं है पास में, वो तो दूसरे कमरे में रखा हुआ। So the mind and the brain is doing it. So the blue light, जब हम रात को सोते हैं और मोबाइल देखकर सो रहे हैं तो it tricks the brain कि अभी रात को सोने का टाइम नहीं आया है। वो मेलाटोनिन को सीक्रेट ही नहीं करने देता है जो स्लीप को इंड्यूस करेगा, और फिर हमको रात को नींद ही नहीं है। और ये अगर मैं बार बार करता रहूंगा तो the neuroplasticity of brain will not allow you to sleep early without a phone। तो नींद ही नहीं आएगा, फिर हम सोएंगे 2-3 बजे तक, उठेंगे 10-11 बजे तक। एंड दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज रीवायर द एंग्शियस ब्रेन। हम कर सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी विल हेल्प यू। कैसे होगा? विथ कामनेस, विथ मेडिटेशन, बाय बीइंग सेल्फ केयर। बस मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ देना चाहता हूँ। अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग आफ्टर द कोल्ड वॉर and after the 9/11 attack, they created a model called as a VUCA model, uncertainty को handle करने के लिए। volatile, uncertain, complex and ambiguity वाला situation होगा तो that is called as a VUCA model। and इसी VUCA में vocal leadership भी है। V for values, U for understanding, C for clarity of communication and E is agility। and values की मैं अगर आपको बात करूँ, बहुत सिंपल है।
जस्ट टेक 2 मिनट में भी आपको ये पता भी होगा कि 26/11 सन 2008 में मुंबई में आतंकवादियों ने अटैक किया था। और इस पर एक छोटा सा रिसर्च किया था डॉक्टर रोहित देशपांडे, इज अ लीडरशिप कोच फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। और इन्होंने रिसर्च में ये पता लगाया कि उस रात को जब वो आतंकवादियों ने ताजमहल होटल मुंबई, दैट वाज द एपिटोम ऑफ द अटैक ऑफ द द मुंबई अटैक, and on that night, fateful night, there were 1,700 people inside the hotel, wherein there were 600 registered guests, 500 additional guests, and 600 employees of the Taj Mahal Hotel who were running the show. And you will be surprised to find that out of 1,700 people, by the time the Black Commandos came and they killed all the terrorists and they quarantined the whole of the Taj Mahal Hotel, it took almost more than 50 hours, and still they couldn't kill more than 34 people. The casualty was only 34 people. 1700 लोगों को वो मार सकते थे, लेकिन वो मार ही नहीं पाए। वो इसीलिए नहीं मार पाए बिकॉज ऑफ द वैल्यू सिस्टम ऑफ द ताजमहल होटल के एम्प्लॉइज, टाटा के एम्प्लॉइज। उसमें से एक भी व्यक्ति वो होटल छोड़ के नहीं भागा। अब वो भारतीय सेना के कोई जवान नहीं थे कि वो, उनके पास तो बंदूक भी नहीं थी, जबकि आतंकवादियों के पास मशीन गन्स थे, ऑटोमेटिक राइफल्स थे, हैंड ग्रेनेड्स थे। आई मीन दे लिट द फायर, द होल बिल्डिंग ऑन फायर। उनके पास बैकपैक था, लेकिन ये 600 एम्प्लॉयज के पास कुछ भी नहीं था। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उनके एम्प्लॉयज ने, उनकी जो वैल्यू सिस्टम थी, उनकी जो कन्विक्शन थी, उनकी जो कमिटमेंट थी, वो इतनी अच्छी थी। मैं बस एक ही एग्जांपल दूंगा कि एक जो 24 साल की एक लड़की थी, वो पंजाब की थी, वो एक बैंक्वेट मैनेजर थी, और वहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग चल रहा था। और उस मीटिंग में उसने उन लोगों को संभाला, वो छोड़ के नहीं गई। रोहित देशपांडे ने इस छोटी सी बच्ची को पूछा, व्हाई डिडंट यू रन अवे टू सेव योर लाइफ? शी सेड, लुक एट द वैल्यू सिस्टम, हाउ कैन आई leave 67 human beings to die? Now this was the commitment and the conviction. इसलिए नहीं कि टाटा थी, इसलिए कि ये बच्चों की जो सिलेक्शन हुआ था, ये मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु से नहीं किया था टाटा ने। ये छोटे छोटे सिटीज में से किया, नासिक इन महाराष्ट्र, हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु, छोटे शहरों में गए। वहां के बच्चों में अभी भी संस्कार, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों के साथ आर्ग्यू नहीं करना। तो वो वैल्यू सिस्टम ने इतने सारे लोगों की जान बचा ली। अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन हूँ, मैं अपने रोल के साथ आइडेंटिफाई करूंगा, जिम्मेवारियों के साथ आइडेंटिफाई करूंगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आइडेंटिफाई करूंगा, तो स्ट्रेस, टेंशन ऑटोमेटिकली आएगा। और ब्रह्मा कुमारी कहती है द सत्य जो अविनाशी है, मैं कभी नहीं मर सकता, इस शरीर से अलग एक सूक्ष्म एनर्जी हूँ, आत्मा हूँ, सोल हूँ, पावर हूँ। जैसे मोबाइल फोन में एक सिम कार्ड होता है, वैसे मेरे शरीर को चलाने वाले इसके अंदर एक सिम कार्ड है, और वो सबके लिए कॉमन है। और उसका जो वैल्यूज है वो ओरिजिनली शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। शांति पाने के लिए कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली मैं शांत हूँ। मुझे I need not love anybody, I need not do the love part of it, I am love. What I'm trying to say is, सारा दिन उठते बैठते खाते पीते धोते नहाते बात करते काम करते, can I be in love? Can I do it with peace? Can I do it with respect? बस इतना ही करना है। और यही ब्रह्मा कुमारी सिखाती है, जो भी करें, क्राइसिस हो या ना भी हो, सुबह से लेकर रात तक हर चीज में शांति और आनंद के साथ करूं। और ये करने के लिए मुझे पावर चाहिए, which I can have it with the communication with God. When I'm introducing God, this is not a Hindu God or a American God or an animal God or a man-made God or a specific community God. सत्य सबके लिए समान है। ये जो जैसे कि सन होता है, सन की किरणें सारी दुनिया के लिए समान है, उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। वैसे ही परमात्मा शांति का सूर्य है, आनंद का सूर्य है, शक्ति का सूर्य है, और हर आत्मा को ये चाहिए। मैं अपने मन बुद्धि से कनेक्ट करता हूँ, जोड़ता हूँ मेडिटेशन में। मैं आत्मा प्रकृति के बीच एक चमकता हुआ सितारा, परमात्मा शांति का सागर। आप सूरज के नीचे बैठेंगे तो आपको गर्मी लगेगा, समुद्र के किनारे बैठेंगे तो ठंडी हवा लगेगी। वैसे ही
परमात्मा के सानिध्य में। चिंता, भय, अशांति, ये देह के संबंध, कारोबार, कल परसों नरसों, खाना पीना, जॉब, 2 मिनट के लिए इनसे हट करके आप करें, और इसका फायदा क्या होगा कि हम में एजिलिटी, वुका का 4th पार्ट था। फर्स्ट इज वैल्यूज, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ इज एजिलिटी। हम मेडिटेशन इसीलिए नहीं करते कि मेरा मन रिलैक्स हो जाए, या फिर मेरा शरीर का मोटापा ठीक हो जाए, या मेरी शरीर ठीक हो जाए, या बीमारी ठीक हो जाए। वो तो हो गई, उसके साथ मेरे अंदर परिवर्तन आए, स्वभाव में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन। मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था, आजकल नहीं आता। पहले मैं बहुत डरता था, आज डरता नहीं। पहले मैं हर चीज को कंपटीशन के भाव से देखा था, प्रूव करने का, अब वो नहीं है। एंड दैट will automatically come. That calmness is the cradle of power. शक्ति का आधार ही शांति है। एजिटेशन से हमारी एनर्जी खर्चा होता है, and that is why it is said the body benefits from movement and the mind benefits from stillness. आपके मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, शरीर के लिए प्राणायाम, योगा, जिम, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मन के लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मन में ज्यादा विचार आएंगे तो वो कमजोर होगा। मन में शांति, जितना कम, जितना सकारात्मक, जितना पॉजिटिव, the mind benefits from stillness. And how you can establish it? By coming to the reality, the truth, that I, the soul, by default, my original, intrinsic, innate quality is peace. नींबू का ओरिजिनल नेचर खट्टापन है, गन्ने का ओरिजिनल नेचर मीठा है। साइंस ने, रिलीजन ने, मनुष्य ने गन्ने को मीठा नहीं बनाया। इट इज बियॉन्ड योर एंड माई कॉम्प्रिहेंशन। इसी तरह आत्मा, हर व्यक्ति संसार में बाय डिफॉल्ट पीसफुल है, लेकिन वो भूल चुका है अपने ओरिजिनल नेचर को। कामनेस वुड मेक एवरीथिंग अराउंड यू एफर्टलेस। क्यों? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को इक्वेशन 1 और 2 पता है। मुझे अपने मन, बुद्धि और संस्कार पर कंप्लीट कंट्रोल है। मेरे अंदर क्या चल रहा है ये मेरा इंडिपेंडेंट चॉइस है, और मुझे पता चल चुका है मैं आत्मा ओरिजिनली शांत हूँ। जो भी कार्य करूँ, किसी के साथ बात, कोई सुन भी नहीं रहा है, उनको भी समझाना, बताना विद पेशेंस। एंड व्हेन आई कैरी कामनेस, व्हेन आई एम्ब्रेस कामनेस, मेरे चेहरे पे, मेरे बोल में, मेरे एक्शंस में वो दिखता है, तो आई क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ कामनेस। आई गिव अ गिफ्ट ऑफ कामनेस टू एवरीबॉडी। एक अगरबत्ती की तरह वो अपनी खुशबू पूरे चारों तरफ फैला देगा। वैसे ही आप कामनेस के अगरबत्ती। लोग, आपके घर वाले आपको बोलेंगे पापा बहुत अच्छे, मम्मी बहुत अच्छी, एजिटेट नहीं होती, घबराती नहीं है, टेंशन नहीं देती, टेंशन लेती भी नहीं है। शी इज अ रॉक स्टडी लाइक झांसी की रानी। शी इज सुपर्ब। एंड फिर दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि उनको शांति अगर चाहिए तो वो आपके पास आएंगे। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड लाइफ इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। हम प्रोसेस को भूल गए हैं। हमारा पूरा आधार लक्ष्य, रिजल्ट, प्रॉफिट, सक्सेस, and in the whole process we miss the beauty of every moment because life is an experience. Calmness, meditation will help you to make the journey beautiful, and we will all be able to bail ourselves out from this current scenario. हम ये बाहर का वातावरण को देख करके हम इतने अधीन ना हो जाएं बिंज ईटिंग में, हमारे रूटीन को डिस्टर्ब करने में, हमारा टेम्परामेंट को खोने में, क्योंकि हम सब, सारी दुनिया ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट है। ऐसे टाइम पर मैं कहता हूँ लीडरशिप इज अ प्रिविलेज एज वेल एज अ चॉइस। तो हम अगर लीडर बने, मम्मी लीडर, पप्पा लीडर, प्रोफेसर लीडर, एम्प्लॉय लीडर, चाचा लीडर, भाई लीडर, बेटा लीडर, बेटी लीडर, एंड जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए उनको मुझसे गिफ्ट मिले शांति, आनंद, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, फॉरगिवनेस, सूदिंग, कामनेस, और ये हम कर सकते हैं। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम पर्सनल लेवल पर अपनों के लिए और सारी दुनिया के लिए, इससे बड़ा हम कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं कर सकते। Thank you so much, friends. I really enjoyed talking to you. I hope the same at your end. Please take time to meditate. सुबह उठते ही साथ प्लीज टीवी और मोबाइल फोन नहीं ऑन करें।
आप अगर इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो अपने घरों में अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर कहें कि हमारा डाइनिंग टेबल ई फ्री होना चाहिए। हफ्ते में, 15 दिन में या 1 महीने में एक दिन हमारा ई फ्री डे होगा। हम टीवी नहीं देखेंगे, हम मोबाइल, हाँ बहुत जरूरी है तो आप मोबाइल से बात कर सकते हैं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे, हम एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगे, एक साथ मिलकर खाना बनाएंगे। वो हमारा पार्टी डे होगा। जैसे पिकनिक में जाते, घूमने जाते, वेकेशन में जाते, तो आपका ऑफिस, कारोबार सब खत्म, नहीं अभी हमारे साथ घूमो आप। इसी तरह घर के अंदर हम पिकनिक मनाएं, सेलिब्रेट करें। बहुत छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं। एंड उसका एक बार टेस्ट अगर सबको लगना शुरू हो जाएगा, then you will feel more happy playing together, doing exercise together, morning, rituals together, evening rituals together, family time, play time, ये हम कर सकते हैं। और इसके साथ आप एक साथ मिलकर मेडिटेशन भी सीख सकते हैं। हमारे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रह्मा कुमारी का राजयोगा मेडिटेशन ऑनलाइन में भी है, और जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप हमारे सेवा केंद्र में जाकर राजयोग मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बस हाफ अ मिनट के लिए हम मेडिटेशन करें। मैं अपना ये वीडियो को ऑन करता हूँ और स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सीधे बैठें, अपने आंखों को बंद कर दें, एकदम रिलैक्स हो जाएं। Focus your attention into the center of your forehead. That I am a sparkling star. My original nature is peace. I don't have to do anything to experience peace. Rather, I have to stop doing all the things which creates peacelessness in me. I am under the canopy of God's Sun's protective rays of peace, happiness, and power. I get a conviction that God is healing me, is energizing me, is empowering me to face the difficulties of this life with calmness. As I pay my way forward and I'm going ahead, I wish everyone in my family, friends, colleagues in my office, I wish goodness and wellness to everyone. Lot of strength during difficult times, lot of tolerance and patience amidst crisis, lot of good health during difficulties. I wish well and I wish good, that everything in future should be effortless, should be easy. धीरे से आंखें खोलें। थैंक यू। ओम शांति।